Hi everyone, welcome to Antara Squad. This is Antara Chakrabarti, your sociology mentor, and in this video, I'm going to discuss some really funny questions that I had received lately. So, 2 days back, I had posted this anonymous message link on my Instagram asking for messages which you people wanted to send me, and I got some really nice messages, of course, and also some really weird questions. So, I thought I'll make a video on it. Now, all of you know that I'm back after a long time. I was on medical leave, this, that. So I thought it will also lighten up my mood along with my students who are really scared and nervous about the exam. So it'll just make you relax for 10 minutes and we can go about it. But before I start answering the questions, I would like to say that there is an ongoing offer going on Unacademy right now, where if you subscribe for 6 months or 12 months, you are going to get 20% off and also some extra months on your subscription. This is mostly targeted towards the students who are going to appear for future exams like December 2023 exam or the next year exams. You can start preparing from now at a really low price and access all the courses that I have taught until now and my future courses. You people already know you can use the code Antarachak for a 10% discount. Now, getting into the video, I obviously cannot answer and discuss all the questions that you people have asked me, but I can at least try and select a few. Before I start, I want to say that there have been quite a few messages about थैंकिंग मी एज अ टीचर. तो मैं उन सारे मैसेजेस का एक ही मैं आंसर देना चाहती हूँ. थैंक्स फॉर गिविंग मी सच लव एंड केयर. यू पीपल वेर रियली विथ मी थ्रू आउट माई प्रोसेस. जब आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज really demotivated for like 2 months and I was going through such a bad time because of my health issues. I was so glad that my students were with me and they supported me all throughout. So thank you for understanding me, thank you for being compassionate and just being nice. So thank you so much. If you think my classes help you and you people thank me in return, trust me, it also motivates me inside कि no, I have to go back to teaching. Like पहले मैंने सोचा था कि मैं मई महीने भी break लूँगी and I will start teaching from June, but then I realized कि जून में net exam भी है, CUET भी है, so I had to come back and start teaching you all again. So thank you everybody who have sent me such sweet messages and said thanks and whatnot. I'm really not a superhuman being. I'm just an ordinary person like you people. So there's nothing big deal about it. All of you can crack your exams. Be your best version. You don't have to be like someone else. You have to be yourself and the best version of yourself. Okay? Alright, so to start with, there is this message who said that you really rock your short hair look. When can we see you again in that short hair? I don't really intend on going back to my short hairstyle again. मैंने बहुत मुश्किल से मेरे बाल लंबे किए हैं. My hair growth is so slow that I don't know, I have just waited for like what 6-7 years probably to get to this hair length. So I'm definitely not going back unless I go bald someday, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, looking at my hair loss. So that might be possible only until then. There's this really funny person who has written कि I liked you for a long time. I used to wait for your new Insta post. अब तो बाबा हो गया हूँ. I think this is the great opportunity to tell you. I don't know who you are. I'm so glad कि आप मेरे boring Instagram posts देखने के लिए wait करते थे. But I really hope कि आप अपने बाबा के जर्नी में काफ़ी सफलता पा चुके हैं and you are enjoying being a baba. I don't know what else to tell. The next message that was about my concern. A lot of you did notice that अगर आप लोग मेरे previous videos देखोगे last year के, I was quite healthier. I have lost a lot of weight because of my health issues and it just dropped abnormally. But initially मुझे ज़्यादा, I was not really bothered about this this sort of weight loss. But then slowly and gradually I started realizing कि it's not normal. आप ऐसे सडनली वेट लॉस नहीं कर सकते. सो या माई हेल्थ इज़ मच बेटर नाउ. आई होप आई रिकवर एंड बिकम फुल्ली फिट अगेन लाइक आई यूज्ड टू बी बिफोर. आई रियली डोंट वांट टू बी दिस sad and sick person. The next message is saying that you are such a nice person. I'm impressed with your education and the way you speak, your accent. First of all, I don't have an accent. ये बहुत ही मेरा एक स्टैंडर्ड एवरेज इंडियन एक्सेंट है. मुझे बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आता एंड आई कांट स्पीक लाइक ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड ऑल दैट इंग्लिश. मेरा बहुत ही
इंडियन और बहुत ही ज़्यादा बंगाली एक्सेंट है, इंग्लिश में भी कभी कभार ऐसे निकल जाता है मेरे वर्ड्स, सो या थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट. नेक्स्ट वन यू आर सेइंग दैट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी फ्री क्लासेस के लिए मुझे थैंक्स बोला है. आई नो दैट इट मैटर्स अ लॉट. बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज या अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज, एंड देयरफॉर माय फ्री क्लासेस हैव ऑलवेज टारगेटेड दो स्टूडेंट्स कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों को एक पूरा फ्रेमवर्क दे दूँ सो दैट एटलीस्ट यू पीपल कैन see the framework and then answer them yourself. So really, I mean, I really wish that all the students who cannot join my courses are able to prepare yourself and utilize all my free classes that I have taken in every platform. But also to say, many students request me ki you should launch the whole course on the free platform. I hope you people realize that I still work for a company और उसके काफ़ी सारे rules regulations होते हैं. I'm not an independent teacher, so I cannot be teaching all the content in the free classes. I have to keep something for the paid classes. So I hope you understand my limitations as well. Yes. The next one is saying, I love you, my crush. I don't want to reveal myself, but I want to love you till my death. I'm pretty sure that is not happening. Please don't do that. Try loving other people as well, because it's an anonymous message. I anyway don't know who you are. And thanks for making me your crush. I mean, it's, as a teacher, I feel it's very, क्या बोलूँ, बहुत ही weird लगता है मुझे जब students मुझे अपना crush बुलाते हैं. I just get very, I don't know, I just get very speechless about these things. There was a really good request where a student said that they want me to do a bookshelf tour, कि मेरे जो भी बुक्स हैं उनका एक टूर कराऊँ. And I think it's really an interesting idea. I mean, all the students who are interested in academics and you really want to know मैंने क्या क्या किताबें पढ़ी हैं. ऑफ कोर्स किताबें आजकल बहुत सारे हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, बट जो भी मेरे पास ऑफलाइन किताबें हैं, आई वुड लव टू डू अ बुक शेल्फ रिव्यू. मेरी किताबें आधे मेरे दिल्ली के घर में है जहाँ पे मैं रहती हूँ, और आधे मेरे होम टाउन के घर में है जो कि ये है, बिकॉज करेंटली आई एम इन माई होम टाउन. सो आई कैन डू अ पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी मेरे बुक्स यहाँ हैं एंड द बुक्स दैट आर देयर इन दिल्ली. सो आई थिंक इट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि आप लोग देखोगे मेरे बुक्स बहुत वेराइटी के रेंज के हैं, फ्रॉम लिटरेचर टू म्यूज़िक, सिनेमा and sociology, development studies. It's like just everywhere. So I think you guys would love the book collection and also get motivated to read probably. नेक्स्ट मैसेजेस कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच आपकी टीचिंग का जलवा है. आई एम सो ग्लैड मेरे टीचिंग का जलवा है. इनफैक्ट आई गॉट टू नो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि इन देयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नो मी, दे रियली लुक अप टू माई क्लासेस, एंड इट रियली मेक्स मी फील गुड, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने मुझे पर्सनली मिला है, आप लोगों ने मुझे, यू माइट हैव नोटिस्ड कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ. आई एम नॉट as I look like in my class. I'm not at all strict. I'm not at all this I don't know, I give out a very arrogant, snobbish vibe. I'm definitely not that. So if you people like my classes, if your university students really like me, I'm so glad that you people do. I hope my classes are helpful and you crack all your exams, and I really wish कि मैं कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी आऊँ तो आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी, because recently if you people know, मार्च महीने में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी गई थी और मुझे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स मिले वहाँ पे. They treated me so well. I didn't even feel like कि मैं नहीं जानती थी उन्हें, और बस एक ही दिन पहले मिली. So I was so glad to meet all the students there. The next question, the next comment actually is कि आप बेस्ट एजुकेटर है, जल्दी से प्रोफेसर बन जाइए, आपके अंडर पीएचडी करेंगे. नाउ लुकिंग एट द करियर ट्रजेक्टरी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन इंडिया, मुझे लगता नहीं कि आप तो मेरे अंडर पीएचडी कर सकते हैं. उसके लिए बहुत वेट करना पड़ेगा. गॉड नोज मेरी नौकरी भी कब लगेगी, बट फिलहाल तो मेरी पीएचडी ख़त्म हुई नहीं है. सो आफ्टर आई एम डन विथ पीएचडी, maybe I can tell you people if I get a job. There is a really weird message which says, I really don't know the answer to it. मुझे पता भी नहीं है आप लोग कहाँ से ये सारे आइडियाज़ लाते हैं. It says, एक आदमी को डव लगाए और दूसरों को बियर्ड पिलाए तो दोनों में ज़्यादा ग्लो कौन करेगा. I really don't know. बियर से ग्लो मिलता है, I don't know.
इफ़ यू द वन हु हैज़ रिटन दिस, इफ़ यू हैव ट्राइड, अगर आपको ट्राइड एंड टेस्टेड रिजल्ट मिली है, आपको ग्लो मिली है, देन प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. आई रियली डोंट नो. मतलब अगर किसी को पता है ये आंसर कि अगर बियर पीने से ज़्यादा ग्लो आएगा या डव लगाने से, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए. आई रियली डोंट नो. ओके, बट या बियर पीने से यू गाइज विल हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. सो प्लीज़ डोंट बी लाइक कि अंतरा मैम ने बोला है ग्लो आ गया चलो बियर पीते हैं. सो प्लीज़, अल्कोहल इज़ बैड, सो हैव एवरीथिंग इन लिमिट्स. द नेक्स्ट इज आस्किंग, मैम आपके जैसा बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? एक तो मेरे जैसा क्यों बनना है, आई डोंट अंडरस्टैंड. यू शुड नेवर टारगेट टू बिकम लाइक समवन, यू शुड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ. और पढ़ना कितना है वो तो पढ़ना है. आई थिंक ऑल ऑफ यू हु नो मी, हु हैव बीन इन माई क्लासेस, नो कि मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ती हूँ. एंड आई एम नॉट लाइक दोज रेगुलर PhD कैंडिडेट्स जो बस एडमिशन ले लेते हैं एंड देन डन. आई लाइक बीइंग अ मल्टीटास्कर. मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ साइड बाय साइड. PhD के साइड भी मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें करती हूँ, रीडिंग बेस्ड ये वो. सो आई कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड. एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा. नॉलेज हैज़ नो बैरियर्स. सो लाइफ में जितना भी कम टाइम है, मेक श्योर दैट रीड मोर एंड मोर. बिकॉज आई रिमेंबर जो एक महीना में एकदम अनप्रोडक्टिव थी ड्यू टू माई हेल्थ इशूज़, आई मेड श्योर कि सिंस आई यूज टू मोस्टली लाई डाउन इन बेड, सो आई थॉट आई कुड रीड बुक्स, क्योंकि मेरे से फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता नहीं था, दिस दैट. सो आई थॉट कि किताबें मैं पढ़ सकती हूँ, और जो कि मैंने किया भी. आई डिड रीड अ लॉट and I feel much better about myself now. It also gives you some confidence and motivation, right? Next is saying, ma'am, when are you planning to get married? In case, are you engaged? I really don't know why do people feel I'm engaged and all. I'm not, and I have no plans on marrying right now. I really do value my career, my academics. So until and unless I become an assistant professor or do a really good PhD, do a postdoc, I'm not going to think of marriage. So yes. एक तो कुछ पंजाबी में लिखा है, सिंस आई डोंट अंडरस्टैंड वेल. मैडम तुसी सीरियसली बहुत स्ट्रगल करते हो, सत्या ले प्राउड ऑफ यू. बस लाइफ विच एक बार तोहनू मिलना हम पंजाब. तो हाँ मैम, आई थिंक द स्टूडेंट इज सेइंग कि मुझे मिलना है पंजाब, आइए. आई डेफिनेटली सी इफ आई कम टू एनी ऑफ योर स्टेट्स, आई एनीवे ड्रॉप अ मैसेज कि मैं आ रही हूँ, तो प्लीज़ मिलने आ जाना अगर वेले बैठे हैं आप लोग. What do you do apart from your Unacademy job? एक तो Unacademy job मुझसे नहीं संभाला जा रहा है. How many jobs do you people want me to do? I just do the Unacademy job, that also part time, very very regular basis, and I do my PhD, which is like a full time job to me. So इसके अलावा I also do a lot of extracurricular thing. I also have another channel called Kalplok on YouTube, and I also manage all the social media of that channel. So yeah, a lot of time goes in that. I really like the next question because I think it's really important for everyone. It says, how do you tackle negativity, bad trolls, rumors about yourself? Now, I'll be very honest with you. जब मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था, I was just like another ordinary person, nobody knows, a very introverted person. मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि जो मेरे यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत लोग जाने में, मैं बहुत ही चुपचाप रहने वाली इंसान हूँ. सो व्हेन आई सडनली स्टार्टेड गेटिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरे वीडियोस यूट्यूब में आने लगे ये वो. सो ऑब्वियसली जब इंसान बिगिन करता है वो अपने बेस्ट वर्जन में नहीं होता है. सो इफ़ यू लुक एट माई वीडियोज़ फ्रॉम 2018 एंड सो एंड यू कंपेयर इट विद द वीडियोज़ नाउ, यू विल सी दैट आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. सो काफ़ी बार वहाँ पे ट्रोल्स आते थे कमेंट्स में कि बकवास पढ़ा रही है, कुछ नहीं आता है, दिस दैट, लॉट ऑफ nonsense rumors. I remember जब last year I was again suffering from a lot of health issues. Some students said कि मैं बहाने मार रही हूँ, मैं ऐसे ही क्लासेस नहीं ले रही हूँ, this that, and a lot of nonsense rumors. I can't even like list. I have lost a count of all the nonsense rumors that I have heard about myself. बट बिगिनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था. लाइक एक एक ट्रोल मुझे याद रहता था, मैं रात भर सोती नहीं थी. आई टू थिंक क्या मुझे सच्ची में पढ़ाना नहीं आता, डू आई रियली नॉट नो एनीथिंग, क्या मैं इतना बुरा क्वालिटी का टीचर हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई रियली वर्कड ऑन देम एंड आई रियलाइज्ड कि एक पॉइंट के बाद ये सारे ट्रोल्स रूमर्स आपको अफेक्ट करना बंद कर देंगे. लाइक यू जस्ट शट योर सेल्फ अवे फ्रॉम सच थिंग्स. आप उन्हें अफेक्ट नहीं करने देते हैं, चाहे वो कितना भी रूड मैसेज हो, कितना भी ख़राब तरीके से आपसे बात करे. यू डोंट रियली, आई डोंट नो, आई जस्ट स्टॉप्ड मेकिंग दोज थिंग्स अफेक्ट मी.
एनी मोर. सो उसके लिए आपको वो एटीट्यूड डेवलप करना है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना है. माई लाइफ इज़ माई प्रायोरिटी और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, वेदर आई एम डूइंग इट राइट और बैड. जस्ट डोंट लिसन टू पीपल. इफ़ यू थिंक वॉट यू आर डूइंग इज़ राइट, जस्ट डू दैट. डोंट थिंक कि अच्छा लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग ये बोल रहे हैं. जस्ट किक दीज थिंग्स आउट ऑफ योर माइंड. आई नो थोड़ा अफेक्ट होता है, बट एक पॉइंट के बाद ट्रस्ट मी इट रियली हेल्प्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मच डज अनअकैडमी पे यू पर मंथ. पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इतने महीनों से मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को. सो टेक्निकली आई हैव नॉट अर्नड अ सिंगल पेनी, बिकॉज अगर मैं क्लासेस नहीं लूँगी, अनअकैडमी इज़ अ कंपनी, इट वोंट पे मी. सो आई एम नॉट अर्निंग एनी थिंग राइट नाउ. अभी मैंने फिर से पढ़ाना शुरू किया. आई होप कि मैं रेगुलरली पढ़ाऊँ सो दैट आई स्टार्ट गेटिंग पेड, क्योंकि अब तो मैं बैंकरप्सी में जाने वाली हूँ. आई रियली डोंट हैव एनी मनी. एंड नेक्स्ट दे आर आस्किंग मैम आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था. लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी दिस. सो द थिंग इज एज आई सेड कि आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट ओवर द लास्ट 2-3 months. बहुत ही एक सडन वेट लॉस था. आई ऑलमोस्ट लॉस्ट टू लाइक 8 to 9 kgs लाइक एनी थिंग विदाउट डूइंग एनी थिंग. एंड कभी कभार ऐसा होता था कि मैं रात को जब खाना खा के सोती हूँ 2-3 घंटे बाद मेरा इतना स्टमक पेन होता था. एंड इट नेवर हैपन टू मी बिफोर. सो मैंने थोड़ा इग्नोर किया एंड आई वाज लाइक ओके इट प्रॉबेबली मस्ट बी नॉर्मल एसिडिटी एंड ऑल ऑफ दैट. बट लेटर इग्नोर करते 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 इट रीच्ड अ पीक. आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन टाइम इन दिल्ली आई वाज शाउटिंग इन पेन, क्योंकि वो टॉलरेशन से बाहर हो गया था. एंड आई वाज लाइक अभी मैं मर जाऊंगी अगर मुझे पेन किलर नहीं मिला. एंड आई वाज क्लूलेस कि क्यों ये हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ. सो देन आई गॉट हॉस्पिटलाइज. धीरे धीरे मुझे जॉन्डिस हो गया. जब पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में इतने सारे स्टोन्स हो गए. एंड इट हैड टू बी इमीडिएटली रिमूव्ड. उसके वजह से मेरा एपेटाइट, खाना सब खत्म हो गया था. लाइक आई रिमेंबर इवन नाउ लाइक आई कांट ईट. लाइक मेरा एपेटाइट बहुत ही घट गया है, मैं खा नहीं पाती हूँ. लाइक नथिंग, माई लाइफ हैज़ जस्ट बिकम दिस पर्सन कि मैं हमेशा सिक फूड खा रही हूँ, खिचड़ी खा रही हूँ, दाल पी रही हूँ लाइक दैट. सो मेरा जो ऑपरेशन हुआ वो गॉल ब्लैडर का हुआ, उसे रिमूव करना पड़ा क्योंकि उसमें स्टोन्स हो गए थे. सो दैट वाज अनदर प्रोसेस. मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज आई नेवर हैड अ सर्जरी और सो. एंड आई वाज लाइक मैं वीडियोस देख रही थी कि पेट कैसे काटेंगे दिस दैट. बट इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस. बिल्कुल डरना नहीं है. बहुत थोड़ा ही वो लोग काटते हैं और गॉल ब्लैडर को बस निकाल देते हैं. बट वही है कि बहुत सारा लाइफस्टाइल में चेंज आ जाता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर डाइट. ऐसा ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली नहीं खा सकते. सो आई एम फॉलोइंग ऑल ऑफ दैट नाउ. आई रियली होप. मैं थक चुकी हूँ एक के बाद एक सिकनेस के बाद. सो आई रियली होप आई एम फिट फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 6 months में मुझे कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए. आई रियली होप दैट. Yeah, so this person is asking, do you have a boyfriend? If yes, how do you manage your relationship along with studies, job, health? Now tell me something, do you people really think I'm able to manage? मुझसे तो जॉब मैनेज नहीं हुआ इतने सारे महीने. हेल्थ तो बिल्कुल ही ज़ीरो मैनेजमेंट. PhD भी पता नहीं कहाँ है बिकॉज आई जस्ट वेस्टेड लाइक 2 months बिकॉज मैं कुछ नहीं काम कर पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. सो आई एम रियली बैड एट मैनेजिंग. सो यू पीपल शुड गिव मी सम मैनेजमेंट स्किल्स. I think yeah, these were all. Rest, I think you people have sent a lot of lovey messages to me. So yeah, this one student is asking, can we date if you are single? अगर मुझे पता ही नहीं आप कौन है, मैं कैसे डेट करूँगा? भूत को थोड़ी डेट करूँगी. So you have to tell me who you are. Okay, so thank you so much. I think this was it. There were a lot of messages, but I had to filter down. I can't be discussing all of them. So I hope you guys didn't get bored and it was a nice break for everybody. I will post such anonymous links on Instagram more often. If you people have not followed me on my Instagram, you should do that because I'll post these anonymous links maybe again after 2 weeks and you can send me your messages and I'll upload another such boring video. So thank you so much. Now back to studies. जो भी classes होंगे attend them. No more मजाक, हंसी मजाक हो गया. And then we'll shift to my strict self. Okay, thank you so much. Bye everyone. I really hope you guys got some respite with this video. Bye everyone. Take care. Don't fall sick like me.